الخدمت فاؤنڈیشن کے یتیم بچوں کے لیے اقدامات قابل قدر، نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب۔ بھلوال میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف اساتذہ کا مظاہرہ اور ریلی بھی نکالی گئی۔ چونیا میں ٹرک کی کیری ڈبے کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ تھانہ صدر پتوکی کی حدود میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ حاصل پور میں جماعت اسلامی کی اسرائیل کے خلاف ریلی۔ نوشہر و فیروز میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ الزائمر کا مرض کیا ہے؟ اس میں مریض کو کون کون سی باتیں یاد رہتی ہیں اور کون سی باتیں بھول جاتا ہے؟ ہیلتھ اسپیشل میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ نگران صوبائی وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی یتیم بچوں کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسامہ اعجاز کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے کفالت یتامہ پروگرام کے تحت پیشنٹ بینوولنس سوسائٹی شیخ زاید ہسپتال کے تعاون سے شیخ زاید میڈیکل کمپلیکس میں یتیم بچوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں الخدمت آرفن کیئر پروگرام کے تحت لاہور کے 1500 سے زائد یتیم بچوں کا مکمل چیک اپ کیا گیا اور ادویات بھی فراہم کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے بچوں اور ان کی ماؤں کے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ میڈیکل کیمپ میں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان، نائب صدر ڈاکٹر مشتاق سمیت 200 ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور مختلف جامعات سے 100 سے زائد الخدمت رضاکاران نے خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات نے بھی کیمپ کا دورہ کیا۔ کیمپ میں بچوں کی تفریح کے لیے فیس پینٹنگ، مہندی، ٹیبلوز، پیٹ شوز، میجک شوز اور جھولوں کے علاوہ بچوں اور ان کے سرپرستوں کے لیے کھانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ڈاکٹر مشتاق نے اس موقع پر کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن آرفن کیئر پروگرام کے تحت ملک بھر کے 28,000 سے زائد یتیم بچوں کو تعلیم، خوراک، تربیت اور ذہنی، جسمانی اور نشو و نما کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا بھی خصوصی خیال رکھا جا رہا ہے۔ بھلوال میں پرائمری ایلیمنٹری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پنجاب حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بلدیہ، محکمہ مال کے ملازمین بھی شریک ہوئے۔ چودھری راشد محمود کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ ریلی کی قیادت پرائمری ایلیمنٹری ٹیچرز ایسوسی ایشن تحصیل بھلوال کے چیئرمین قاری عظمت الہی، صدر افضل کوندل نے کی۔ ریلی گورنمنٹ ہائی اسکول بھلوال سے شروع ہوئی، دفتر ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر تعلیم خواتین اور فوارہ چوک سے ہوتی ہوئی دوبارہ گورنمنٹ ہائی اسکول بھلوال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں مقررین رانا محمد فیاض، میاں جاوید اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہمارے قائدین کی گرفتاری غیر قانونی ہے، جسے ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومت پنجاب قائدین کو فوری رہائی کے لیے احکامات جاری کرے۔ مقررین نے کہا کہ ماضی میں بھی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث سرکاری محکموں کا بیڑا غرق ہوا۔ اب سرکاری ملازمین میں عدم جا رہی ہے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چونیا میں تیز رفتار ٹرک اور کیری ڈبے میں تصادم، حادثے کے نتیجے میں لڑکی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فیملی کے دیگر 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ مزدہ ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلم بابر کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ بصیر پور کی رہائشی فیملی کیری ڈبہ پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ تیز رفتار مزدہ ٹرک نے تیز رفتاری کے باعث کچل ڈالا، جس کے نتیجے میں کیری ڈبہ ڈرائیور اور 12 سالہ نبیلہ بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئی، جبکہ فیملی کے دیگر 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن میں 3 گاڑیوں نے حصہ لیا، جنہوں نے جاں بحق اور زخمیوں کو فوری ہسپتال منتقل کیا۔ مزدہ ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ الہ آباد پولیس نے مزدہ ٹرک کو قبضہ میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ صدر پتوکی کے علاقے سریسر روڈ پر پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایچ او حافظ عاطف نذیر کا کہنا ہے کہ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ زہیب شیخ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔
थाना सदर पतोकी की हदूद में वकास नामी शहरी ने पुलिस को 15 पर इतला दी कि 4 डाकू उससे 10,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। थाना सदर पतोकी की पुलिस ने SHO की सरबराही में फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए नाकाबंदी कर दी। सरेसर रोड पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मी डाकू जिला कसूर समेत मुख्तलिफ अजला की पुलिस को डकैती और कत्ल समेत 30 संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर मुख्तलिफ इतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान की अपनी फायरिंग से 2 साथी डाकू जख्मी हो गए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकुओं के कब्जे से छीनी गई रकम, मोबाइल और असला बरामद कर लिया गया। जख्मी डाकुओं को तहसील अस्पताल पतोकी मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। पाकपतन में सरकारी मुलाजमीन की तंजीम अगेका का अपने मुतालबात के हक में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। एहतजाजी धरने में नवाही इलाकों के असातिज़ा की भरपूर शिरकत। तारिक महमूद कम्बो की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पाकपतन में अपने सरकारी मुलाजमीन के अपने मुतालबात के हक में जारी एहतजाज 8वें रोज में दाखिल हो गया। एहतजाजी मुजाहिरे और धरने में शहर के नवाही इलाकों के असातिज़ा भी पेश हैं। मुजाहिरीन का कहना है हमारे हक पर डाका मारा जा रहा है। लिव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तब्दीली को यकसर मुस्तरद करते हैं। हमारे गवर्नमेंट मुलाजमीन जो सारी जिंदगी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें भी इतनी नहीं होती, सारी जिंदगी गुजार के अपनी 60 साल के बाद वो रिटायर होते हैं। उसके बाद वो बेचारे कुछ भी करने के काबिल नहीं होते। उनका एक सहारा होता है उनकी पेंशन। अगर वो पेंशन ही बेचारों की बंद कर दी जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या होगा। उसके अलावा हमारी यंग जनरेशन जो 2018 के बाद से कोई नई भर्तियां नहीं हुई हैं, सारे के सारे 2018 तक जो है मेरिट पे आए थे। हम लोग टेस्ट दे के लगे थे, उसके बावजूद जो SSE 16 स्केल के हैं या AUs हैं, उनमें से किसी को भी रेगुलर नहीं किया जा रहा। जब मेरिट पे हम लोगों की भर्तियां की गई हैं तो फिर हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है। हजारों मुलाजमीन अपने हक के लिए खड़े हैं, पेंशन रूल्स के खिलाफ और लीव इन कैशमेंट के खिलाफ, और जो आपने सालाना इंक्रीमेंट आपने ख़त्म की है उसके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। इंशाल्लाह हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे, अपने मुतालबात और हुकूमत के इस गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जिला ओकाड़ा में मर्द व खातीन असातिज़ा की मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली धरना भी दिया। मुत्तहिदा महाज असातिज़ा जिला ओकाड़ा के सदर परवेज़ अख्तर का कहना है कि गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। आपको जैसा कि मालूम है कि ये जालिम हुकूमत के खूबसूरत कंधों पे खुली हुई है। पंजाब पूरे पंजाब में सिर्फ एहतजाज है। हमारे लीव इन कैशमेंट का मामला है, हमारी LPR पेंशन और ग्रेजुएटी का मामला है। स्कूल हमारे जो है वो पूरे पंजाब के हर जिले से बेहतरीन जो स्कूल है वो NGOs के हवाले किए जाते हैं। तो इन इक़दामात से इनको पीछे हटना होगा। हमारी मुतहद हैं, हम इत्तेहाद हमारा बरकरार है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की कॉल पर हासिलपुर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइल के वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में मर्द व खातीन और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। फैयाज खोकर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की कॉल पर हासिलपुर में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए और इसराइल के मुजालिम और बर्बरियत के खिलाफ एक भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ किस्म के कुतबे उठा रखे थे। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई बल्दिया चौक पहुंची। हफीज भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान होश के नाखुन ले और मुस्लिम मुल्क की इमदाद करे। नौशहर फिरोज गंदगी और गंदे पानी की वजह से मसाइल का गढ़ बन गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई, जबकि शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद आदिल अब्बासी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहर अफरोज शहर के अंदर सब रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने, जहां पे गंदे पानी होने की वजह से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो इंतज़ामिया है वो अपने बंगलों तक महदूद है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे उनका इन हवाले से क्या कहना है। आप देख सकते हैं कि पुरानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस मेरे बिल्कुल अकब में है और ये नई सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। पुरानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लाखों रुपए का टैक्स जो कि ये ऑफिस से पेड करती हैं तालकम म्यूनिसिपल टैक्स के ज़रिए। ये नई ऑफिस है, इसके सामने भी दरिया बना हुआ है और पुरानी ऑफिस तो सारी की सारी जो है वो पानी में गिरी पड़ी है। ये 1 साल से हमारा मसला चल रहा है और 1 साल से ये मसला हमारा यानी कि हल नहीं हो रहा। और यहाँ से
तकरीबन 40 से 50 नमाजी जो है मस्जिद में जाते हैं, जिनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। यानी कि जो नमाजी हैं ना, इतनी मुश्किलात में हैं कि वो यहाँ से आना जाना भी उन्होंने छोड़ दिया है। और ये जो टैक्स दिया जाता है, हमारी गुजारिश है, ये टैक्स कहाँ जा रहा है, यहाँ की सफाई क्यों नहीं की जा रही, और इस गंदगी से हमें क्यों आज़ाद नहीं किया जा रहा। हर रोज़ का मामूल हो गया, हम ऑफिसों में नहीं बैठ सकते गंदगी की वजह से, जो है हमें बदबू आती है इस पानी की वजह से। ये जो यहाँ पे मोहल्लेदार है, ये बेचारे सारे के सारे परेशान हैं। हमारी गुजारिश है कि इसमें से हमारी जान छुड़ाई जाए, इस गंदगी से हमें आज़ाद किया जाए। अभी नौशर अफरोज़ का जो अहम मसला चल रहा है अभी ये सफाई और गंदगी का है। हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और यहाँ पे कोई शक नहीं कि हम आपको दिखाएं, ये तो आप थोड़ा नज़ारा तो देखें। हमें किसी दरिया पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से जाएं, कोई भी नौशर अफरोज़ की एक भी गली नहीं है जहाँ पे कचरे के ढेर नहीं है, जहाँ पे गटरों का पानी नहीं है। नौशर अफरोज़ में कोई भी ऐसी गली नहीं है, बिल्कुल पानी में डूब चुका है। और इसके साथ जो है वो हमें यही कंफर्म है कि यहाँ का डीसी, टीएमओ, म्यूनसिपल ऑफिसर और हमारे जो चुने हुए मेंबरान हैं वो भी इन गटर के पानी में पहले ही डूब चुके हैं। उनको बिल्कुल शर्म गैरत हया कुछ भी नहीं है, अब जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे। हम एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं, न्यूज़ में दे रहे हैं, हमने काफ़ी सारे केसेस किए हैं, मगर यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बस मर चुके हैं, और इससे ज़्यादा तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा मुतालबा ये है कि शहर को जो है साफ़ सुथरा किया जाए और हमें जो है इस गंदगी से आज़ाद किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पे कई सालों से ये गंदा पानी मौजूद है, और हमने कई बार इंतजामिया को कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कैमरामैन GM मीरानी के साथ मोहम्मद आतिल अब्बासी, स्पेशल टीवी न्यूज़, नौशर अफरोज़। अल्जाइमर का मर्ज क्या है, इसमें मरीज किन मराहिल से गुजरता है? स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना था, आइए देखते हैं। अल्जाइमर क्या है, कैसे होता है, इसको किस उम्र में होता है, इस पे रोशनी डालें। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन का शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को बड़े इन्हमाक से देखते हैं। और एक रिसर्च जो थी, ये बड़े सग़ीर में हमारा प्रोग्राम ऑन एयर देखा जाता है, और स्पेशली इंडिया में भी बड़ी माशाल्लाह पता चलता है रिसर्च से। अल्जाइमर तो डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर थे। 1906 में इन्होंने एक रिसर्च की थी एक डेड वुमन के ऊपर। अच्छा, ये अल्जाइमर जो है ये एक शख्सियत है पीछे? ये बेसिकली एक डॉक्टर साहब का नाम है। अच्छा, पर्सनैलिटी है? जी, पर्सनैलिटी है। एलोइस अल्जाइमर इनका नाम था पूरा। 1906 में इन्होंने एक रिसर्च की थी एक डेड वुमन के ऊपर, एक खातून के ऊपर। उसकी वफात के बाद उसके ज़हन का आप समझ लें, उर्फ़े आम में आजकल पोस्टमार्टम कह लें, तो उन्होंने उस पर रिसर्च की थी कि उस वक्त उनके जहन के जो न्यूरॉन्स थे या सेल्स थे उस पर कुछ स्टडीज़ की थी, और फिर ये चीज़ सामने आई थी कि अल्जाइमर की जो सिम्टम्स हैं ये क्या हो सकती हैं। तो अल्जाइमर अगर उर्फ़े आम में कहूँगा तो बेसिकली तो है न्यूरॉन्स की डिस्टर्बेंस है, जो जहन का सर्किट है वो आउट हो जाता है, उसमें यादाश्त के मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेज में तो ये यादाश्त के मसले मसाइल होते हैं, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में ये बिल्कुल ही बंदा उसमें अनकॉन्शियसनेस और बिल्कुल ना पहचानना और बिल्कुल दिमाग जो है गैर मुतवाज़न हो जाता है। तो डेमेंशिया इसकी एक ब्रॉड टर्म को कहते हैं, अल्जाइमर जो है ये इसकी एक टाइप है। तो आगे चल के इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करते हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।